Good morning, dear students. Welcome back to your today's class. See, yesterday, last previous lecture, we saw we have to solve the material nouns. Okay, already we have seen material nouns, and on the basis of material noun, we have to solve the J exercises. Okay, what we have seen in the J exercises? In the J exercises, they have a material nouns in a bracket. We have to choose one and pick a perfect match. The answer. Okay. After that material nouns, we have seen the abstract noun. What is the abstract noun? Already we have seen the abstract noun is the name of the quality, state, and the ideas. Okay. So we cannot see here. We just think that particular quality of states. Okay, so already we have taken the examples है ना. कौन से examples लिए थे हमने? Honesty, laughter, truth, hope. Okay, so then after abstract noun, on the basis of abstract noun, we have seen the exercises, K exercises है ना. तो now we will see the exercises K. On the basis of the abstract noun. See, firstly you have to remember, you have to concentrate, and you just focus what is the abstract noun, है ना. Abstract noun means क्या होता है? An abstract noun is the name of qualities, the name of the quality, states, feeling or ideas. मतलब feelings और idea means क्या होता है? जो वी हैव टू फील अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स, जो भी हम महसूस करते हैं, व्हाट वी थिंक, हम जो सोचते हैं, है ना, सोचते हैं उसमें ही, बट वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट हियर, वी कैन नॉट टच. ओके, ये सब बातें, बट वी कैन ओनली थिंक. जो ऐसी चीजें हैं हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बस वी कैन थिंक ऑन अवर माइंड, हम बस उसके बारे में सोच सकते हैं. दैट इज द abstract noun. Got it? Okay, so on the basis of the abstract noun, we will see the exercise K. Okay, see, in the exercise key, use the abstract noun given above to answer these questions. क्या बोला है कि जो भी abstract noun के examples they have given below the abstract nouns, we have to choose the correct one and write it down in the answer. अब उन्हें दिया है कि use the abstract noun given to the answer the question. First क्या दिया है? See, on the blackboard I have, sorry, in the blackboard, yes, in this blackboard I am just write it down the only answers. Okay, I am reading, but on the blackboard I am just reading out the answers. Okay, first, what qualities does a cruel king show? अब यहाँ पे क्या है, हमको जो भी किसी persons के, किसी भी things के, they shows only their qualities. Okay, so we have to change in the noun, मतलब उनका first form हमको लिखना है. जैसे already they have given a first example, cruel, मतलब एक king की दो, these kings have a which quality is a cruel quality, और उन्होंने क्या दिया वहाँ पे? cruelty. Understood? So that is the abstract, मतलब हमको उसका first name noun लिखना है. Okay, अब second क्या बोला है? What quality does a brave person show? जो भी brave person की जो qualities है, तो क्या दिखा है? मतलब person की जो brave quality है वो दिखा है. तो already we have seen, already we have to read out what is the abstract noun. Abstract noun is the show the quality idea, isn't it? So यहाँ पे जो भी हमको exercise K में दिया है, it all is the qualities. ये सभी क्या दिए? Qualities दिए. The particular quality shows about the particular person, particular things. Understood? Yes. So what quality does a brave person show? A brave person show. Brave का हमको क्या लिखना है? Bravery.
क्या लिखना है हमको? ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी। ओके, अंडरस्टूड? आया समझ में? ब्रेव मतलब क्या उसकी क्वालिटी शो हो रही है पर्सन की? इट्स अ ब्रेव, सो दैट्स व्हाई व्हेन वी पुट द आंसर इज ब्रेवरी। ओके, सो थर्ड वन, व्हाट क्वालिटी डज अ कोवर्ट शो? क्या है वहां पे? मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कोवर्ट शो करता है? इसका क्या आएगा? कोवर्डिज। थर्ड का क्या है? कोवर्डाइज। ओके, COWARDICE, कोवर्डाइज, है ना? ओके, अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटी डज एन एंगर वुमन शो? मतलब एक जो वुमन है, एक जो स्त्री है, वो अपनी कौन सी क्वालिटी शी हैज टू एक्सप्रेस द एंग्री? एंग्री का क्या आएगा? ऑब्वियसली इट्स अ एंगर। एंगर मतलब क्या होता है? गुस्सा, है ना? तो द वुमन शोज हिज क्वालिटी थ्रू आउट हर एंगर। एंग्री का क्या आएगा फर्स्ट? इट्स अ एंगर। ओके, देन व्हाट क्वालिटी डज अ बॉय शो? बॉय जो हु हैज ही जस्ट रिवील हिज पर्सनैलिटी बाय अ लेजी, है ना? मतलब जो कोई लड़का है वो जो अपनी पर्सनैलिटी किससे शो कर रहा है? वो लेजी, तो ऑब्वियसली इज अ लेजीनेस। अंडरस्टूड? इट्स अ लेजीनेस। आ रहा है आपको समझ में? ओके, देन व्हाट क्वालिटी डज अ फुलिश सर्वेंट शो? व्हाट क्वालिटी अ फुलिश मतलब क्या होता है? मूर्ख। सर्वेंट शो मतलब वो ऐसी कौन सी मतलब क्वालिटीज है जो नौकर शो कर रहा है? इट्स अ सर्वेंट। और सर्वेंट कौन सी क्वालिटी शो कर रहा है? इट्स अ फुलिश, तो क्या लिखेंगे हम? इट्स अ फुलिशनेस। फुलिशनेस, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट सेवेंथ वन, व्हाट क्वालिटी डज अ इनोसेंट गर्ल शो? इनोसेंट लिखा है वहां पे, इनोसेंट ENT, तो जो भी गर्ल है वो अपनी कौन सी क्वालिटी शो कर रही है? इनोसेंट, शी इज वेरी इनोसेंट, गुडी गुडी जैसे बोलते हैं। ऑब्वियसली व्हेन वी राइट द आंसर वी शुड राइट द इनोसेंस। ओके, इनोसेंस। ठीक है, इनोसेंट है तो हम उसको जब बोलेंगे कि हाँ शी इज वेरी इनोसेंट गर्ल। ओके, वैसे व्हाट क्वालिटी डज अ प्राउड वुमन शो? वुमन जो उसकी जो क्वालिटी बता रहा है वो क्या, कौन सी क्वालिटी? इट्स अ प्राउड, तो व्हाट वी हैव टू राइट इट? इट्स अ प्राइड। प्राउड का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? इट्स अ प्राइड। ओके, व्हाट क्वालिटी डज अ हम्बल मैन शो? हम्बल मीन्स क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, प्रामाणिक भी बोल सकते हैं, है ना? हम्बलनेस। व्हाट्स क्वालिटी डज हम्बल मैन शो? मतलब जो एक आदमी है, जो मैन है, वो अपनी कौन सी क्वालिटी शो कर रहा है? इट्स अ हम्बल, ऑब्वियसली इट्स अ हम्बलनेस। Please write it down with the correct spelling. Okay. Then last one, what quality does a true tale story? True tale story मतलब सच्चे आधारित पर कहानियां जो रहते हैं, it's a true tale story। हम क्या बोलेंगे? It's a truth, सच्चाई। हम बोलते हैं ना please at least say truth, हम बोलते हैं ना please speak truth, सच बोलो, तो वैसे मतलब ये जो आधार पे हम बोलते हैं ना ट्रूथ स्टोरी, ट्रूथ टेल, टेल मतलब कहानियां। ओके, सो वंस अगेन आई एम रीड आउट। फर्स्ट वन क्या है? व्हाट क्वालिटी डज अ क्रूएल किंग शो? तो वहां पे ऑलरेडी दिया है कि क्रूएल का क्या लिखा है उन्होंने? क्रूएलिटी। ओके,
Second one, see, you have to just see on the blackboard. Okay, I'm just reading out. Second, what quality does a brave person show? It's a bravery. BRAVERY, bravery. Third one, what is the third one? What quality does a coward show? It's a cowardice. COWARDICE. Okay. Fourth one, what quality does an angry woman show? It's a anger. Okay, it's a anger. Then fifth one, what quality does a lazy boy show? It's a laziness. LAZYNESS. It's a laziness. Sixth one, what quality does a foolish servant show? It's a foolishness. Murkhapana. FOOLISHENESS. Okay, foolishness. What quality does what quality does a innocent girl show? The answer is innocence. Okay. Then what quality does a proud woman show? It's a pride. PRDI. It's a pride. Then what quality does a humble man show? मतलब humbly, बहुत ही बुढ़ी जैसे बोलते हैं हम. HUMBLENESS. humble, humbleness. उसके बाद है 10th one is what quality does prudence show? It's a truth. ट्रू का क्या आएगा वहां पे? Truth. Okay. Okay. So I hope you all of write it down the answers. Okay. So let's move the next exercise. It's a I. So क्या दिया यहाँ पे? Fill in the blank with suitable abstract noun from the help box. Again we have to solve on the basis of abstract noun. Okay. हमको फिर से abstract noun के थ्रू हमको क्या करना है? वो जो सेंटेंस दिए we have to fill the help of the box. Help box में क्या दिए हैं? They have given us the clue. Those who had helping us when we have to write down the answer. Okay. तो क्या दिया वहाँ पे? हमको 10 सेंटेंस दिए हैं. We have to choose the correct one. Okay. So again on the blackboard I am just writing down answers. Okay. First see वहाँ पे help box में क्या दिया है? Truth, justice, happiness, health, trouble, punctually, life, treatment, fragrance and wisdom. सबसे पहले तो हमको ये पता रहना चाहिए what is the help box. जो वर्ड है what is the meaning. Okay. Truth means सच्चाई. Already I told you. Justice मतलब न्याय. Happiness मतलब खुशियाँ. Health means हमारी जो health है ना. ट्रबल मतलब नुकसान जो हम नहीं. ट्रबल मीन्स क्या होता है? हम फंस गए हैं कभी मुश्किल में. ओके. पंक्चुअलिटी मतलब पंक्चुअल इज मतलब टाइम पे आना जाना है ना. मतलब अपने इसमें वो पंक्चुअल है. लाइफ ऑब्वियसली हम जो बोलते हैं जीवन. ट्रीटमेंट मतलब सबको पता है. जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं व्यवहार है ना. फ्रेग्रेंस खुशबू. एंड विजडम मीन्स क्या होता है बताओ? उसकी सच्चाई बोल सकते हैं है ना. उसके बाद देखो. सो अभी आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन. द पेशेंट रिसीव ब्लैंक फ्रॉम अ डॉक्टर. जो भी पेशेंट्स है, जो रोगी है, वो अपने डॉक्टर से क्या पाता है? सी द आंसर्स इज हियर. हेल्प बॉक्स में आंसर दिया है. यू जस्ट लुक द आंसर्स. एक बार आप नजर डालो वहां पे कि विच इज द करेक्ट वन. कौन सा हो सकता है कि द पेशेंट रिसीव फ्रॉम अ डॉक्टर. क्या? ऑब्वियसली इट्स अ ट्रीटमेंट. इट्स अ ट्रीटमेंट. हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए तो जाते हैं ना. when we feel very bad, when I have a fever, when we have a fever, so obviously we have to go to the doctor for a treatment. Okay, understood? So
सो TREATMENT ट्रीटमेंट के लिए हम जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑलवेज स्पीक द, हमेशा हमको क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। ऑलरेडी इन द लास्ट in the K exercise, the 10th one, we have already seen the truth, the quality adjustment trait, सच्चाई। So always speak the truth, हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। Isn't it? Okay. Life is full of, हमारा जो जीवन है वो क्या है? किससे भरा है? It's a happiness, खुशियों से। So the answer is happiness. Understood? समझ में आ रहा है आपको? You have to just pick the right one. The help of the abstract noun. जहाँ पे abstract noun in sentence में fit हो रहा है, fixed हो रहा है, correct हो रहा है, we have to write it down the answers. Okay. So first one, we have completed. The patient received treatment from a doctor. Always speak the truth. Everybody knows, हम सब हमारे parents they always tells us कि बेटा please tell the truth. सभी बोलते हैं कि please always speak the truth. हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। Then the fourth one is wealth. वो क्या दिया fourth में? wealth. तो एक ये फ्रेज ही है, बोलेंगे कि health is wealth. What is the health? Is wealth. Understood? HEALTH. Health is wealth. Next, the rose have a sweet. हमको सबको पता है कि गुलाब के फूलों से क्या आती है? खुशबू। I told you the fragrance means it's a smell, sweet smell, खुशबू बोलते हैं। Okay, so the rose has a sweet fragrance, RANCE, fragrance, okay, RANCE, okay, तो मतलब रोज, गुलाब के फूलों से क्या आ रही है? हमको बहुत ही ज्यादा खुशबू आ रही है। ओके, सी द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन इज गुड हैबिट। अच्छी आदत क्या है? पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इज गुड हैबिट। जैसे हम बोलेंगे इफ आई केम इन लेट इन द स्कूल, आई केम लेट इन द स्कूल, सो इट्स नॉट माई गुड हैबिट। टाइम पर पहुंचना, यू हैव टू कम टू टाइम, है ना? मतलब आपको टाइम पे आना जाना, इट्स अ पंक्चुअलिटी। तो ये क्या है? अगर इफ आई केम अर्ली या आई केम ऑन द टाइम, सो इट्स माई गुड हैबिट। तो ऑब्वियसली पंक्चुअलिटी पंक्चुअलिटी इज गुड हैबिट। ओके, उसके बाद क्या है? फेस द विथ अ स्माइल, मतलब हमेशा हमको सामना करना चाहिए। खुश मतलब क्या बोला है वहां पे? हमेशा हमारे चेहरे पे खुशी से, मतलब हमेशा खुश रह के उनका सामना करना। जैसे नहीं कि मुझे दुख है, मतलब मुझे दुख है लेकिन मैं चेहरे पे ऐसे मतलब 12 बजे है कि नहीं मुझे मतलब मुझे खुशी नहीं अंदर से। तो वो क्या बोल रहा है? फेस द ट्रबल। आंसर क्या है इसका? फेस द ट्रबल विथ अ स्माइल फेस। हमेशा हमको मतलब कठिनाई का सामना करना चाहिए विथ स्माइल फेस। हमेशा चेहरे पे क्या होना चाहिए? खुशी होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए। ओके, देन अ जज गिव जस्टिस। अ जज गिव, और we know the judge is, why he is sitting, because he is a judge, he gave to all the people it's a justice। वो हमको क्या देता है? न्याय देता है। So judges gives justice, it's a justice।
नेक्स्ट क्या है, वाटर इज नेसेसरी फॉर, ऑब्वियसली वाटर इज नेसेसरी फॉर अ लाइफ। हमारे जीवन में पानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, विदाउट वाटर वी कांट लिव, अंडरस्टूड? सो वाटर इज अ नेसेसरी फॉर लाइफ। नेक्स्ट, सोलमन इज फेमस फॉर हिज विजडम। लास्ट वन क्या है, विजडम। सोलमन जो है वो किसके लिए फेमस है, फॉर हिज विजडम के लिए, है ना? सो दीज ऑल आर द आंसर्स ऑफ द एक्सरसाइज L. ओके, एक्सरसाइज L. Come on, I will give you 5 minutes. Come on, write it down. First treatment, second truth, third one is happiness, then health, sixth one is fragrance, seventh one is punctuality, eighth one is trouble, ninth one is justice, tenth one, sorry, it's a ninth one is life, and 10th one is wisdom. So here we have to complete our exercise K and L. So tomorrow we will see the exercise M. I think it is also basis on the abstract noun. Okay. अब आप बोल रहे होंगे कि अब C is the last चैप्टर, मतलब ये काइंड ऑफ nouns and kind of nouns का last है M. Okay. So we will see tomorrow. Okay. So till then, take care. See you tomorrow.